So, today we are going to discuss the economics of class ninth. So, this is our first chapter, and the name of the chapter is The Story of Village Palampur. Okay, this is our first chapter, and the name is Story of Palampur. Okay, so let's take an overview of the chapter that is here. In this first page, the overview has been given. So, let's see. The purpose of the story is to introduce some basic concept related to the production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money. As we read through the story of Palampur, we will learn the various resources combined to produce a desired good and services in the village. So here the story that the chapter that is completely based on an hypothetical village, that it is a like imaginary village, that आपको ये एक imagine करना होगा कि एक village है जिसका नाम क्या है, पालमपुर है. इट्स नेम इज पालमपुर. सो यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, बट उसमें मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग. फार्मिंग के साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि कई सारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी भी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स वगैरह भी है. सो इन दिस वे सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिमिटेड स्केल पर होती हैं. ठीक है. सो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो इनमें कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. हम सब जानते हैं कि आप कोई भी आज फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हमें कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा. सो यहाँ ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, एज वी विल रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हम लोग कई सारे रिसोर्सेज को जान सकेंगे कि कोई भी जब हम प्रोडक्शन करते हैं सो वहाँ कौन कौन सी रिसोर्सेज की नीड होती हैं. सो हेयर जस्ट introduction of Palampur has been given, that Palampur is well connected with neighboring villages and town. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. Okay, and all-weather road connects the village to Raiganj, and further on the nearest small town of Shapur. Many kinds of transport are visible here. Roads starting from bullock carts, tongas, buggy, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large and made of bricks and cement plastering. The Dalits comprise one third of the populations, and then they live on one corner of the village and much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of houses have electricity power, all the tube well in the field, and is used in various types of business. Palampur has primary school. So Palampur has two primary schools, one high school, primary health center run by government, and one private dispensary where the sick are treated. So the description above show that the system Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school, health care, health center. Compare these facilities with those in your nearby विलेज. सो इन्होंने यहाँ हमें कहा है कि पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है. ओके, यहाँ 450 फैमिलीज़ है, जिसमें से 80 फैमिलीज़ जो है अपर कास्ट में बिलोंग करती है, और कुछ जो है एससी यानी दलित्स, उनको दलित्स भी कहा जाता है, तो वो 1/3 पॉपुलेशन है वहाँ की. सो वो वहाँ विलेज में एक दूसरे साइड में रहते हैं. ओके, एंड उनके कई सारे लोगों के घर जो है स्मॉल हाउस है, तो कई छोटे छोटे घर है, तो कई सारे लोगों के घर जो है मड एंड स्ट्रॉ से भी बने हुए ऐसे भी घर है.
तो और इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर घरों में, कई सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स में क्या मिलेगा आपको, ट्यूबवेल भी मिल सकते हैं, मिलेंगे। इज वेरियस स्मॉल बिजनेस, पालमपुर है प्राइमरी स्कूल भी है, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल भी है यहाँ पर, एंड यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। ओके, हेल्थ सेंटर भी है, रन बाय गवर्नमेंट, एंड 1 ऑफ प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। सो यहाँ इन्होंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। सो हमने जब ये चीज़ें देखी तो हमने जाना कि पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड, एक ऐसा विलेज है जो कि वेल डेवलप्ड है। और देन इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी, ये है कि कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन नियर बाय विलेज। आपके आसपास जो भी विलेज है उसके बारे में भी जानिए कि आपके विलेज में, आपके जो पास में विलेज है वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी इस टाइप से। ओके, so the story of Palampur, an imaginary village, will take us through a different types of production activity in village. ठीक है, so here we saw that Palampur story है, वो एक story of Palampur है, वो एक imaginary village है जो हमें कई सारे अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगी और हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी। सो एक इन विलेज अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्लूड ऑल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। We shall look at the both of these types of activities after learning a few general things of production. So जब हम प्रोडक्शन की छोटी छोटी जनरल थिंग्स के बारे में अच्छी सी जानकारी, नॉलेज ले लेंगे, सो हम इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हम इनको बहुत अच्छे से जान पाएंगे, प्रैक्टिकली हम लोग इन्हें अच्छे से जान पाओ। Yes, this is here that organization of production. Let's talk about the organization of production. That आप जब भी कोई इंडस्ट्री जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हमको चाहिए होंगे, किस तरह से वो बनेंगे। सो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स सी, द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द goods. Okay, here goods and services that we want. प्रोडक्शन का मेन एम क्या होगा कि हमें गुड्स और सर्विसेज वो ही बनानी है, वो ही प्रोड्यूस करनी है जो हम चाहते हैं। सो ओके, देयर आर sorry, this is like there are 4 requirements of the प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ हमें क्या है, 4 रिक्वायरमेंट, 4 चीज़ें चाहिए होगी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। ओके, सो हेयर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ओके, जो पहली रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो क्या होगी, लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ लेबर, एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट। एंड देन जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होगी आपकी दैट विल बी वर्किंग कैपिटल। ओके, फाइन। ओके, आई होप you are getting understand by the explanation that I am giving. So here some problem has occurred. 1 minute, please wait. Some problem occurred. These all are like technical issue. I'm sorry, please, for these all. Yes, here, yeah, we were here. Okay, सो आप सभी ने देख लिया कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ क्या क्या चाहिए होता है, हमें लैंड चाहिए होता है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो हमें वहाँ क्या चाहिए होगा, लैंड, और साथ ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर चाहिए होगा, फॉरेस्ट चाहिए होंगे, और फॉरेस्ट भी ज़रूरत पड़ती है हमें क्योंकि वहीं से तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, एंड देन मिनरल।
Okay, the second requirement, that is labor, that are i.e. that is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can manual work. Each of working is प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ हमने देखा कि हमें लैंड चाहिए, लैंड के बाद हमें सेकंड थिंग चाहिए लेबर. ओके, सो लेबर जब हमें चाहिए तो हाँ इन्होंने कहा हमें लेबर्स भी कुछ अलग टाइप्स के चाहिए होंगे. दैट लाइक एक कैटेगरी ऐसी होगी जहाँ पर हमें कुछ वेल एजुकेटेड जो लेबर्स होंगे उनकी नीड होगी. ठीक है, कि मतलब वो हम लोगों का कुछ जो हाईली परफॉर्म कर सके, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. ठीक है, कुछ ऐसे टास्क भी होंगे जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स कर सकते हैं. तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होगी जो हमारी मैनुअल वर्क में इंक्लूड होगी, तो वो कोई भी जो इलिटरेट काइंड पर्सन होते हैं तो वो भी कर सकेंगे. ओके, या उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली है तो वो भी ऐसे काम को कर सकते हैं. तो दैट आर इंक्लूडेड इन मैनुअल वर्क. ठीक है, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी ऑफ प्रोडक्शन. सो हर एक जो वर्कर होता है तो अपनी अपनी उन सब की अपनी अपनी इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि प्रोडक्शन में, दैट कि जो हमारा प्रोडक्शन वर्क है वो लेबर्स के बिना इनकम्प्लीट है. ओके, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. द थर्ड रिक्वायरमेंट होगी आपकी जो क्या होगी, फिजिकल कैपिटल होगी. सो दैट इज़ द वेराइटी of inputs required at every stage during production. So physical capital, what is physical capital? आपको physical capital किस वे में आप समझ सकते हैं, like tools, machines, buildings. So tools and machine are range from simple tools such as farmer's plug to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. So here we saw that जो tools and machines है वो कई टाइप की हो सकती है. कई सारे टूल्स ऐसे भी हैं जो कि फार्मर्स प्लग्स जो होते हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. तो कई सारे ऐसे टूल्स भी होते हैं दैट आर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज. कई सारी ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती जिन्हें हमें चलाना, जिन्हें ऑपरेट करना लाइक वेरी बिग टास्क लाइक जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर. तो इन ऐसे जो टूल्स है, ये जो मशीन्स हैं, इन्हें कुछ इनके जो वेल नोन पर्सन होते हैं वो ही इन्हें वर्क ऑपरेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम सोफिस्टिकेटेड मशीन. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So यहाँ आपने टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स जो भी देखी है तो ये प्रोडक्शन में सालों साल काम आती है. तो दैट इज़ वाई वी हैव कॉल दिस फिक्स्ड कैपिटल. सो हमने इन्हें क्या बुलाया, फिक्स्ड कैपिटल. And now the next is raw material and money in hand. सो हमारा नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो टूल था, सो जो फिजिकल कैपिटल है दैट इज रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, मनी इन हैंड भी होना चाहिए. दैट प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn यूज्ड बाय वीवर, क्ले यूज्ड बाय पॉटर. ओके, सो हमने एक बहुत छोटे से एक छोटी सी इंडस्ट्रीज पर देखा है दैट कि एक वीवर को क्या चाहिए होगा, यार्न चाहिए होगा, एंड एक पोटर को क्या चाहिए होगा, क्ले चाहिए होगा. सो इसी तरह से उनके पास एक थोड़ी बहुत मनी भी चाहिए होती है सो दैट जो नेसेसरी आइटम्स है वो मार्केट से या बाहर से वो परचेस कर सके, उनका पेमेंट इजीली कर सके. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. सो जो रॉ मटेरियल है, मनी इन हैंड है, तो उनको हमने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल. एक तो हमारे फिजिकल कैपिटल में हमने इंक्लूड किया था फिक्स्ड कैपिटल को, एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. ओके, so we have just included the two kinds of capital in our physical capital, that was fixed capital and next is working capital. Unlike tools, machines and buildings, they are used in production. जैसे टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स आता है यूज़ में, उसी सेम वे में वर्किंग कैपिटल दैट इज़ रॉ मटेरियल एंड मनी वो भी सेम मैनर में ही यूज़ आती हैं. और द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ टू, अब यहाँ पर इसी के साथ साथ एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है दैट यू विल नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट
land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself to sell in the market. ओके, सो इन्होंने हमें कहा कि एक जो आपने देख लिया कि हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए था, लैंड रिक्वायरमेंट थी, ओके, लेबर रिक्वायरमेंट थी, देन आफ्टर दैट यू हैव सा दैट फिजिकल रिक्वायरमेंट भी, फिजिकल कैपिटल्स भी हमें यहाँ पर चाहिए थी। सो इनके साथ साथ हमें एक ऐसी चीज़ भी चाहिए जो हमने प्रोडक्शन किया है, दैट जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन हमने किया है ना, दैट जो आपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन किया है तो उसे मार्केट में उसकी सेलिंग भी हो सके। दैट इज़ आवर फोर्थ नेसेसिएट रिक्वायरमेंट। ओके, हमें जिन चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सी दैट इन्होंने कहा आपने जो भी यहाँ बना है तो उसे हम मार्केट में सेलिंग कैसे करेंगे। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय combining land, labor, physical capital and human capital. सो जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी तो उसे हमने क्या नाम दिया, फिजिकल कैपिटल। द थर्ड वॉज जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी उसे हमने नेम दिया ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसे हमने क्या नेम दिया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जब हम पालमपुर की कंप्लीट स्टोरी को पढ़ेंगे, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारे 3 फैक्टर्स है स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 प्रोडक्शन है उनको वेल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, हम उनसे अच्छे से उन्हें जान सकेंगे। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in the chapter. So हम हमारी इजीनेस कन्वीनियंस के लिए हम लोग फिजिकल कैपिटल को कैपिटल की फॉर्म में यूज़ करेंगे। We will term it as capital. Okay. So I hope you have just understood the complete overview of the chapter and organization of production, that I have just told you that there are 4 major requirements of production. Okay, there are 4 major requirements of production. So the first was land, all right, the second was labor, the third was physical capital and the fourth was human capital. Understood? Human capital. सो लैंड में आप लोगों ने देखा कि लैंड लाइक हम लोगों को कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी नीड होती है, फॉरेस्ट वाटर। सो ये सब कहाँ आएंगे, लैंड पे इंक्लूड किए जाएंगे। एंड देन वी सा द लेबर्स में कौन आएंगे इंक्लूड, हमारे वर्कर्स आएंगे। दैट वर्कर्स में भी 2 टाइप के पर्सन आ जाएंगे, एक तो वेल एडुकेटेड हमें चाहिए होंगे और कुछ हमें ऐसे चाहिए होंगे जो हमारे मैनुअल वर्क्स को कर सके। देन physical capital that was included, that like some of the kind of tools, machine buildings are included in physical capital. So these machine buildings and tools were known as fixed capital. Okay, and then other raw material and money in hand was to be termed as work capital. Okay, so that is that working capital. Okay, so then after this we have saw the fourth factor of production, that was human being. चलो अब हम इसको एक प्रैक्टिकली मैनर में समझते हैं। दैट जब भी हम इकोनॉमिक्स हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब उसे प्रैक्टिकल मैनर में समझेंगे सो दैट विल बी लाइक आपके लिए बिल्कुल कम्प्लीटली इस तरह से वो छप जाएगा, एकदम प्रिंट हो जाएगा माइंड में फॉर ईयर टू ईयर, मैनी ईयर्स आपके माइंड में इस तरह से बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि नेक्स्ट में आगे लाइफ में लाइक कुछ और सब्जेक्ट लूँगा तो इकोनॉमिक्स मेरे क्या काम आएगी एंड ऑल टाइप्स। अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी आपको अपने जो वर्क है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वहाँ पर ध्यान देना है। दैट विल हेल्प टू
to improve your grades, that will make you more sophisticated person, that if you have the all kinds of knowledge, अगर आपके पास हर तरह के सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, that automatically you will be known as sophisticated person. Okay, so please understand, please try to see there that हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स को पढ़ लिया है. दैट आर लेक्चर ऑफ टुडे हैज़ बीन कंप्लीटेड. आई होप आपको मेरा जो समझाया हुआ है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, दैट आपको समझ आ ही रहा होगा. और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू सो मच.